Hello, everyone. A very good morning to all our participants, faculty members, and speakers of the day. I would like to welcome you all to the day three of Faculty Development Program 2024 on Science and Technology in Indian Knowledge Systems, an initiative by Chhatrapati Shahuji Maharaj University and Berhat. The theme of today's session is biotechnology, chemistry, and metallurgy. The speaker of today's first session is Professor V. Ramanathan from Indian Institute of Technology, BHU, Varanasi. Sir is an accomplished educator, researcher with expertise in laser spectroscopy, Raman spectroscopy, imaging, and computational chemistry. His other interests include Indian science heritage and Carnatic music. He has developed and taught postgraduate courses in quantum chemistry, group theory, spectroscopy, statistical thermodynamics, and more. He holds a PhD in chemistry from IIT Kanpur and received Fulbright academic professional excellence postdoctorate fellowship from University of Basel, Switzerland, and Seoul National University, South Korea. He is a Fulbright scholar and was a former member of Indian National Young Academy of Science. He also holds the Outstanding Alumnus Award from DBMS in English School and University All-Rounder Award in 2002. It is an honor to have you with us, sir. Today, sir will enlighten us on the topic of chemistry, metallurgy, material science in ancient and medieval India. Sir, kindly begin the session. Namaskar to one and all, and I thank Dr. Hashmi to have given such a generous introduction. I hope I am audible to all. Yes, sir. I also thank Dr. Anshu, who has been the point of contact from Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur. And initially, when she had approached me, I was all excited because I have stayed in the city not very far from the university campus for almost 6 years. And I was hoping to come and give this talk in person, but unfortunately, several things prevented me, the last minute preoccupations, because of which I could not come. My apologies for the same. And I ended up giving or bargaining for an online presentation, and that's what is happening now. So without much ado, as introduced by Ms. Hashmi, I would request that this screen sharing be enabled so that I have this PowerPoint slides to show, by which I can get started. Yes, sir. 1 minute. As it is getting sorted out, can I just have a hands up of people who have the background of science? Sir, you may check now. You may share the screen. Yeah. Before I switch on to the screen, if I can quickly see how many people are from science background, so that will help me in getting into the requisite details. You can indicate it by just showing some emoji. That is, we're participating through the Zoom platform. You go to more, there are reactions. So if you can do that. Okay, I see 1, 2. Okay, thank you. But others, either they have logged in and then they have engaged themselves in something else. So if Hashmi ji, can you give me a rough figure of the background of this audience? That will really help me. Sir, we're writing in the chat box if you can see. Ms. Varsha Gupta is from biotechnology. No, if it is chat box, I can read it. But if you have any prior information, I can.
Good morning, sir. Okay. Very few of us are from sciences, but I'm from biotechnology, Dr. Draupadi from environmental sciences, and maybe one or two more from the scientific background. Okay. So it's a mixed background, majority represented by From humanities, non-scientific. literature, and all. Yeah, Wonderful. humanities, Okay. literature, So, and other. okay. It makes my task a little bit difficult because as the topic is on science and technology, for today's lecture, uh, because I see that in the last couple of months also there are a lot of discussion. There seems to be a biasness towards science when it comes to IKS. Is it that only the topics on science and technology constitutes IKS? That's a larger question for a debate, which I'm not going to take up now. But as a student of Western science, when until some years back, I had an impression that perhaps it is in the non-scientific field that Indians had a major contribution in terms of poetry, in terms of large compositions, language, linguistic analysis. So we were under the impression, at least people like me who are students of Western science, and as Dr. Hashmi introduced, I had did my PhD from IIT Kanpur. Definitely, I did not do it in Indian knowledge system. It was laser spectroscopy, which is a Western science. So we were growing up under the impression that science, technology, जहाँ तक बात आती है, वो केवल यूरोपियन साइंस की बात आती है, भारत में तो वैसा कुछ है ही नहीं. So that's why people like us are being given platform because it was a game changer for us. For us, in the sense, people who are trained in Western science, and then they discovered, okay, there are gold mines of Indian heritage in science and technology as well. So that's why you find science people getting into IKS, whereas people who are from, say, language background, Sanskrit background, literature, they automatically by default have a proclivity for this IKS. So anyway, so bear with me if I get into some technical details, and you can stop me at any given point of time, although I will be in the screen mode, but you can indicate if you have any question to ask, if you want any clarification, or if you have to make any comment. In between, since it's an online presentation, it will be a little difficult for me to keep track. I'll definitely have some time towards the end for those interaction. And this is not a seminar, not a colloquium, neither a conference presentation. This is, I would put it, a kind of a formal platform in which I'm trying to share my preoccupied thoughts on the scientific heritage of India. So if you have anything to add on to it, to comment, to criticize, you're most welcome. Let's keep that towards the end, last 15 minutes or so. It's 10:45 now. I have time, I believe, until till 12 o'clock. I will try to finish it by 11:30, 11:40 or so. Last 20 minutes, 15 to 20 minutes, we can definitely have this interaction session. So with that long winding introduction, I will now switch on my presentation and close my video so that I don't eat compromise on the bandwidth. So just a sec. Is my screen visible? Yes, sir, it is visible now. Okay. And I'm assuming that the screen is visible now in a presentation mode. Yes, sir. So we will get started. It's a very broad topic of looking into chemistry, metallurgy, and material science in ancient and medieval India. And
you must realize that both the geographical span as well as the spatial and the temporal spread is quite wide, because whole of ancient people from history, they'll be immediately wondering in their mind that I have, in one sentence, I've swept across almost close to 1500 years. So that's why towards the end put, it's a few highlights that I wish to present through this presentation from achievements in these fields. See, as I told you a few minutes back also, that we have a general impression that ancient Indians had not much to do with the fields of science and technology. Rather, there were some achievements in terms of architecture, because luckily for us, we still see some of the grand temple complexes that are widely present across the country, more so in the southern parts of the country, which gives us an idea that there was some sense of an engineering skill because of which they could build this kind of monuments and structures. We have dams, we have reservoirs, water reservoir, especially from Rajasthan, southern parts of Rajasthan, Gujarat, and Bihar, what are called as Bavdi or Babali, and one of them popularly referred to as Rani Ki Vav in Gujarat, the state of Gujarat. And then we have high accomplishments in literature. So what is it that we had to do with science? That brings us to also our philosophical understanding of reality. And I'll be dwelling a little bit on the epistemological approach, the very gamut of knowledge itself. I will be mixing Hindi and English, bilingual, with the hope that whatever I want to communicate gets across in a very cogent manner and language doesn't become a barrier. तो भारतीय अतीत के जो ज्ञान अर्जन के विधियां थी, जिसको हम आज आधुनिक शब्द एपिस्टेमोलॉजी से जानते हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत टिप्पणी करते हुए कि अभी वर्तमान काल में 2024 जैसे वर्ष में जब भारत जो है गगनयान की तरफ बढ़ रहा है, पूरा विश्व गगनयान चंद्रयान को कर चुका है, तो अभी हम भारत के अतीत में हुए विज्ञान के बारे में, तकनीकी के विषयों के बारे में जान करके हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या ये हिस्ट्री का एक एक्स्ट्रा पहलू है, एक नया अध्याय जुड़ रहा है साइंटिफिक हिस्ट्री का? ये इंट्रोडक्शन में इन सब बिंदुओं पे कवर करते हुए कुछ उदाहरण, मैं क्योंकि मेरा मेन विषय केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से संबंधित जो विषय हैं, धातुशास्त्र और पदार्थ शास्त्र, इन सब के बारे में थोड़े थोड़े एक गरुड़ावलोकन के रूप में आपको कुछ उदाहरण दूंगा. When it comes to epistemology, और जो ज्ञान अर्जन करने की जो प्रक्रिया है, ये पाश्चात्य जगत में और हमारे यहाँ के सोच विचार में, उसमें कुछ तो सामंजस्य है और बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पाश्चात्य जगत में ज्ञान अर्जन करने की विधि में जो क्रमशः एवोल्यूशन हुआ है, उसके झलक हमें ग्रीक फिलोसोफर से मिलते हैं, और उसके बाद कई सालों के बाद रेनेसां पीरियड के प्रारंभिक काल से मिलते हैं. रेनेसां पीरियड के जो दार्शनिक हुए थे वहां पे, उनके वचनों से, उनके कार्यों से हमें देखने को मिलता है. इन सब में एक समानता जो दिखती है कि उन विचारधाराओं का जो आधारभूत विचार था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक था, कि मनुष्य ही सर्वोपरि है इस पूरे सृष्टि में, और मनुष्य का ही सबसे
उच्च स्तर है अन्य जीव जंतुओं के समान। अन्य जीव जंतुओं के तुलना में मनुष्य ही सर्वोपरि है। उसी के भोग एवं उपभोग के लिए ये पूरी सृष्टि रची गई है, और इसी सोच के आधार पर जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, जो वैज्ञानिक सोच का उद्गम हुआ है, और जो तकनीकियां वहां पे बनी हैं, वो इसी सोच विचार के आधार पर बनी है। अब इसके पीछे बहुत सारे शोध पत्र लिखे गए हैं, पाश्चात्य शोधकर्ताओं ने इस पर गंभीर विचार करके। जो मैं कह रहा हूं उसका जो निचोड़ है यही है कि द एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच has been the substratum of the technological advancements in the European soil or the Western soil. अब इसके परिणाम क्या है? अभी हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, so that everybody is having a good green earth to live on. अब क्योंकि ये मानवीय सर्वोपरिवाद के आधार पर तकनीकियों का आविष्कार हुआ, मानवीय उपभोग के लिए कोई सीमा नहीं थी कि वो पर्यावरण को किस तरह से शोषित करे। That is exactly what we are experiencing now in terms of environmental pollution and sustainability, because we have been exploiting the resources of the earth in a very, very uncontrolled manner, and that has to be contrasted with the Oriental thought, which was ecocentric. When I say Oriental, I am not only restricting to India, but also India, China, all these Eastern countries which shared a similar culture, of which the leader has been India. What is that approach? It is the ecocentric approach, where हम अपने आप को कभी सर्वोपरि नहीं माने हैं, अपितु इस पूरे सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं उन्हीं के तरह हमारा अस्तित्व भी समान रूप से उन्हीं के जैसा है। जितना अधिकार एक पेड़ का इस पृथ्वी पर है, उतना ही अधिकार एवं मनुष्य का भी है। तो इसके कारण क्या है कि अगर हमारे यहाँ पे वन के उपज को मनुष्य के उपभोग के लिए प्रयोग किया जा रहा था अतीत में, तो उस वन को एक तरह से शोषित करने के बाद उसको वन को खत्म करने की एक प्रक्रिया हमारे अतीत में कहीं उदाहरण नहीं मिलेंगे। अभी तक हमारे यहाँ पे भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे सेक्रेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आज भी जीवित है। अभी भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जहाँ पे यदि उनके घर में कोई विवाह अथवा कोई मुख्य संस्कार, मुख्य कोई घटना घटती है, तो वृक्षारोपण का एक अंश जुड़ जाता है स्वाभाविक रूप से। तो we can see the contrasting approach towards the environmental sustainability based on the very fundamental thought of how to approach, how to look at the human intervention itself, stemming up from either the anthropocentric approach or the ecocentric approach. This basically comes from the reductionist point of view or the holistic point of view. And there are many kind of people from history and language and perhaps philosophy background who can understand it more better. So I will not dwell deeper. No, but the larger question that looms is this ecocentric approach should not be construed to a non-scientific approach. अगर हमारे यहाँ पे वो साइंटिफिक थॉट नहीं रहा होता तो कभी भी ये इकोसेंट्रिक अप्रोच को हम अपनाते नहीं। अब साइंटिफिक अप्रोच क्या है? In a very, very narrow term, going by the Western scientists, philosophers of science quotations or their definitions, it is the reproducibility and the falsifiability. That is a scientific approach. You do not go by any preconceived notion. कोई पूर्वाग्रह मत के अनुसार कोई काम
न करते हुए प्रत्येक कार्य के पीछे जो प्रश्न है उनको उठाते हुए उसको एक निष्पक्ष रूप से तथ्य को परख करके सत्य तक पहुंचना ही एक वैज्ञानिक विचारधारा का परिभाषा है। अब हमारे यहाँ पे अतीत में आप, इसलिए मैं ज्ञान अर्जन करने की विधि को एक बहुत ही विशाल रूप से लेकर के बोल रहा हूं। अगर आप प्रमाण शास्त्र की ओर देखेंगे, प्रमाकरणम इति प्रमाणम, हमारे संस्कृत के बंधु जो अगर यहाँ पे हैं तो वो इसको और भली भांति इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो प्रमाण शास्त्र के आधार, प्रमाणों के आधार पर ही किसी भी तथ्य को उस कसौटी पे रगड़ करके ही उसको सत्य के रूप में या फिर ज्ञान के रूप में अथवा उसमें वो मिथ्या है अथवा ज्ञान है, ये परख इन प्रमाण की कसौटियों में रगड़ने के बाद ही पहुंचते हैं। तो इसके इसके पीछे तो हमारे यहाँ पे सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं, सैकड़ों बुद्धिजीवी ऐसे हुए हैं जो एक एक प्रमाण को भी लेकर के उसके एनालिसिस करते हुए कॉम्पोजिशंस बहुत सारे हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान काल में जो हम विज्ञान के रूप में विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाते हैं, वो प्रत्यक्ष शब्द अथवा आगम और अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही सभी को हम समेट सकते हैं। ये तीन जो कि नैयायिक में एक और भी जुड़ जाता है क्योंकि वो 4 प्रमाण को मानेंगे, बट एक वेदांत मत के अनुसार यदि हम 6 प्रमाण को लेकर के जाएं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। अब सामान्य रूप से नैयायिक 4 को मानेंगे, वैशेषिक 3 को मानेंगे, बट उस भिन्नताओं पे ना जाते हुए इतना कहना मेरे लिए पर्याप्त होगा कि जो वर्तमान काल का जितने भी वैज्ञानिक विचार अथवा खोज आविष्कार हो रहे हैं, तकनीकियों बन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष कुछ स्तर तक शब्द अथवा आगम और ये पूर्ण रूप से अनुमान के आधार पर ही है। अब विडंबना ये है कि जिस प्रमाण शास्त्र के प्रणेता हम रहे हैं अतीत में, हमारे ही वर्तमान वैज्ञानिक इन सब विषयों से अभिमुख नहीं है, और जो अभिमुख भी हैं वो इनमें सामंजस्य नहीं देख पा रहे हैं, या देख पा रहे हैं तो इसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अथवा इसको तिरस्कार कर रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति है जिसके कारण सरकार को जब नई पाठ्यक्रम एनईपी 2020 अथवा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना तो उसके अंतर्गत आईकेएस को एक प्रमुख स्तर दिया गया, जिसके कारणवश ही हम और आज आप यहाँ पे समय व्यतीत कर रहे हैं इन सब विषयों को जानने के लिए। अब विषय, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री मेटलर्जी रखा है, तो वैसे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत ही विशाल है जिसपे मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन आज के इस वक्तव्य के लिए मैं मेरी जो विषय सीमा है वो केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, उनमें से कुछ अमुक उदाहरणों को लेकर के एक टेक्सचुअल बेसिस और एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस दोनों को साथ लेते हुए मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर हम मानवीय सभ्यता के अनेक कालखंडन पे हम ध्यान दें, जो कि अगेन इट इज postulated by the Western geologists or the Western anthropologists, like we had Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, then comes the Copper age, Bronze age, Iron age, and after Iron age, it is either Silicon age or it is garbage. It depends upon what perspective we take into it. So human civilization has always associated itself with some material for making tools so that their livelihood is made in a more comfortable way. That has been the human endeavor
And last few years back, there was a big report in one of the top journals of the world, Nature, that currently the anthropologist and behavioral biologist together, they have observed that the chimpanzees are entering the Stone Age. So now you can understand that few thousand of years, what we are using the technology, communicating with each other, perhaps these chimpanzees will evolve into that. So coming to the metal usage, Stone Age के बारे में तो ज़्यादा वो केमिस्ट्री के विषय के अंतर्गत वो, हालांकि स्टोन भी केमिस्ट्री मटेरियल है, बट the tools that come into are more of interest to archaeologists because they will see whether it is sharp, how it is getting sharpened. So I'll start from the metal age onwards. And here is one verse which is unambiguously from the older corpus of literature, which is a Vedic literature, where you find explicit mention of 6 different metals, which in Sanskrit are Hiranya, Aya, Sisa, Trapu, Shyama, and Loha. For the interest of my linguistic friends, if they are in the audience, we must always keep track of the fact that the words keep changing at different points in time. So much so that it becomes both a difficulty to look at the ancient science and technology through mere words. A good example is in front of us in the slide, where the word Hiranya, today we understand generally as gold, and Aya as iron. There are debates among the linguists where, according to Panchanan Niyogi, Hiranya is supposed to be indicating silver and Aya as gold. So he has his own linguistic arguments for that. Similarly, the word Shyama, it is no longer in use. The object is in use, but the word Shyama for that particular object is not in use ever since the Atharva Vedic period onwards. Because Shyama refers to iron in this context, what I'm showing. Similarly, Loha in this context is referring copper. But the word Loha, when it comes to the Atharva period and later and until the time today, Loha is not being used for copper. Rather today, what is in vogue, प्रचलन में लोहा शब्द जो है वो केवल आयरन को दर्शाएगा आज. तो इस बात को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में रखना है कि जो शब्द हैं, यद्यपि उनके द्वारा जिस वस्तु का के वो प्रतीक हैं, वो वस्तु यद्यपि आज तक उसी रूप में व्यवहार में है, बट उनको संबोधित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग अथवा शब्द समूह का जो प्रयोग हुआ है, उनमें विभिन्न कालों में परिवर्तन आए हैं. ठीक है, so this should be kept in mind. Otherwise, we will get a lot of confusions because some word that is used today should not be applied to something that was there 500 or 1,000 years ago. Okay. Now this is a second. I'm not sure whether this is. Are you able to see the title that is behind the black screen? I need somebody to unmute and say whether you're able to see the title. It's visible. It's visible? Sorry. Jambu Nadam, yeah, it's visible. Okay, so something above Jambu Nadam is not visible. That is what I wanted to confirm. No. Gold in Arthashastra. Okay, that is visible. अगर Gold in visible है तो फिर Arthashastra. ठीक है, कोई बात नहीं. That is visible.
Otherwise, this is a typical question that I wanted to ask. Here, what I'm showing is a text from a very old text, which is kind of accepted to be around 2000 years old from now, which is Arthashastra, where we come across explicit mention of several metals, typically the 6 metals that are being described. But before I get into it, in the previous slide also, one point that I wish to make, which may be of interest to historians, or why it is not moving? Sorry. Which may be of interest to historians and social scientists and archaeologists, if there are any in the audience, that here is where I am showing you 6 different metals and attributing it to Krishna Yajurveda, whose periodization is a problematic thing. If you look at Max Muller, he has dated it after 1500 BCE, but later works after Max Muller has put it to slightly older period, say 2500 BCE. Whatever it is, even if it is 2500 BCE, or some people have taken it back to even 3000 BCE, I find an explicit mention of 6 different metals at the same place, which could only mean 2 things. One, the chronological development that the anthropologists or archaeologists have given vis-a-vis Stone Age, Copper Age, Bronze Age, Iron Age, and each of them existing for 500 to 600 years or even longer, will not be applicable in the case of India. Because here somebody at even 2500 BC calling all of them at the same place is a rather impossible task. Gold may be found, but definitely iron could not have been found. Or different, the observation of tin. Similarly, or another aspect is this should have got composed after the Iron Age. In our case, normally the historians will attribute the Iron Age as the Arthashastra period. But this is at least 2000 years before Arthashastra. Arthashastra is around the Common Era, that is 200 BC or 100 BC. Around that is still debatable, but that is the core of Artha. According to Romila Thapar, Arthashastra was also having some core, and it was growing until the late Maurya or the early Gupta period. Even if the core is having, this is coming right, Arthashastra, let's leave it, but this is at least 2000 years before Arthashastra. So that anthropological question also must be taken into the criticism, and one needs serious critique. So here I have this Arthashastra, and this comes right at the 2nd chapter. So even if Romila Thapar's argument that the core is written sometime, say in 100 BC, and the peripherals and other chapters are getting added, like her typical hypothesis for Ramayana and Mahabharata also, and it takes place all the way up till 400 to or 500 AD. Even if you accept that hypothesis on face value, this is coming right in the 2nd chapter. Okay, what I'm showing you the text is the 4th verse, 3rd and 4th verse in the 2nd chapter. So here, as somebody read it rightly, Jambunidam, Shatakumbham, Hatakam, Vainavam, etc. These are different types of gold that the period or the goldsmith during the time of Arthashastra was prevalent in the society. And the Granthakar also goes to say, Kinjal Kavarnam, Mridusnigdham, Anadi, Bhrajishnu, Chasreshtham. So which among these different kind of gold is superior? Which of them is Madhyam, Raktapitakam, and etc. It goes on classifying things and how to test them, which has a lot of interesting chemistry and metallurgical details. For instance, in nature, gold is perhaps the only metal which is found in its zero oxidation state. What I mean by zero oxidation state is in its native form in the nature. Otherwise, most of the metals, in fact, why most? Other than copper, other than gold, every other material has got the tendency to get
rusted, to get corroded by the action of oxygen, except for maybe gold, platinum, and titanium, which are, of course, platinum and titanium metals were not known in the ancient period as they are known today. But the point is, gold is also not always found in native form. Gold and other metals are found in their ionic form, in their salt form or oxide form, and one needs to spend energy on them, that is the chemistry energy, to supply electrons so that each of these metal ions can come back to its native state. And we can use metals for our day-to-day purposes only when the metals are in their native state. So one should understand these nuances. When I say that gold and its different alloys are mentioned in Arthashastra, this one sentence is enshrining in itself the metallurgical and chemical processes that gets involved behind the sentence. Okay. Today we know gold as typically 926 gold. If now today, anyway, Dhanteras is coming soon, many of the Indian families have got the ritualistic tendency to buy gold on that day. So one of the purity of the gold or hallmarking of gold happens by saying that this gold is a 916 or 926. I'm not very sure which one. 91, 916. That three numbers is indicating the purity. What it means that in that gold, suppose you take 100 grams of gold, 91.6 grams of gold is pure gold, and the remaining 8.4 grams are either silver and copper and other metals, zinc, whatever it is. 8.4% of that, whatever gold you are purchasing, is not actually gold. It is some other metal. By mixing them only, gold is able to get some stability. Otherwise, gold is a very soft metal. You bend it, it will bend it, that shape will be gone. So you cannot make structurally robust jewels or ornaments with it. That structural stability only will come only if you mix metals with it. And when you mix more metals, the gold purity will go down. That is a gold content from 91.6, it will go down to say 80%. There are some gold like 14 karat or 12 karat where the gold percentage is even less than 50% in the artifact that you buy. And they will have different colors also. If the copper content is more, it will be a reddish color, that gold ornament. It may have 50% gold and 50% copper. So these are the different varieties of gold that is even present today. It was also present 2000 years back. And very interestingly, the methods which were used to test the purity of gold has almost remained the same from Arthashastra period till now. और वही है कसौटी में रगड़ करके सोने की शुद्धता को परखना. This presentation, I have not put that photo, but in the same text of Arthashastra, Kautilya talks about this kasauti, how the gold should be rubbed on it, what should be added, and how you can infer the purity of gold from this. And very interestingly, in the same chapter, towards the end of the chapter, Kautilya also says that if some goldsmith is, मान लो, making 12 karat of gold, making ornaments out of 12 karat gold. Of course, carat is a word that we use in the modern times. It was not used back then. Say, for instance, here, Jata Rupam is 12 karat and Jambu Nadam is 24 karat or 22 karat. Suppose in the Arthashastra period, somebody is making Jata Rupam gold ornament and selling it at the price of Jambu Nadam gold. How to catch him? And what kind of punishment should be given? All those things are also being mentioned in this chapter. Fast forwarding to copper. These are the places which are recorded from Pancharan Yogi's work, where the copper metallurgy was
widely being practiced in our country. Copper, another very important metal, both industrially and culturally, socially, because wherever gold is not that affordable, right? From past even till this day. Gold is always kept at a premium because of its less reactivity. And back then, gold standard was the fulcrum of the economy with which every community was functioning across the country, across the world. Then the industrial use of gold and interestingly, there was the dental implant was excavated by archaeologists in the North Indian soil, where a golden tooth was also found. That's a very rare occurrence. But the industrial use of gold happened only in the last 30, 40 years, where electronic components had started to make use of gold in them. But back then, gold was always at a premium because it never decayed, it never rusted. But that cannot always be affordable and used by common people. Next element that was widely used was copper. Historically, copper was also excavated as a next metal. And there are Indians' engagement with copper is very huge. One testimony for that is this 10 meters, 8 to 10 meters long standing Buddha statue made of 100%, 99.9% pure copper, which was excavated from a village called Sultanganj in Bihar, roughly in the middle of the 19th century by Alexander Cunningham. And it is currently क्या मतलब when it was excavated, right from that time it is इसको भेज दिया गया था बर्मिंघम. वर्तमान काल में ये बर्मिंघम म्यूजियम में बहुत ही संरक्षित और सुरक्षित बैठा हुआ है. ये हमारे भारत में बिहार के सुल्तानगंज जिले के उत्खनन से इसको प्राप्त किया गया था. कॉपर जिनको कॉपर को डिफरेंट वैरायटीज में यूज किया जाता है, बट कुछ लोग जो आदी हैं कॉपर को का प्रयोग करते हुए कड़ा के रूप में या कंगन के रूप में, देखेंगे कि जैसे जैसे वो पानी के संपर्क में आता है, वह वैसे वैसे अपना रंग में उसका परिवर्तन आता है, हरा हरा सा होने लगता है वो. सो कॉपर, producing rustless copper again is one of the not a trivial technology. And here you see the fineness with which this copper statue was made. Look at the robe of Gautam Buddha, the front layer, the back layer, how they are differentiated, and this kind of fineness resisting rust despite being buried under the ground for who knows several centuries, talks about the exquisite knowledge of copper metallurgists of ancient and medieval India. Talking of alloys of copper, this is a very striking example of bronze, which right from the age of Harappa, a quintessential caricaturing of Harappan metallurgical excavation is this dancing girl whose picture has appeared in the history textbook of class 6 or class 7, at least whenever in the independent India, whichever textbook you see, this is prominently being exhibited. And the same technology, I'll repeat my words, जिस तकनीकी माध्यम से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से ये कांस्य की जो आकृतियां बनाने की जो पद्धति थी, यथावत वही प्रक्रिया वर्तमान काल तक भी वो चलती आ रही है. उदाहरण स्वरूप अगर आप आज दक्षिण भारत में चले जाएंगे अथवा छत्तीसगढ़ के इलाके में डोकरा ट्राइब, डोकरा की जो आकृति, डोकरा एक एक हमारे भारतीय एक समूह है. उनको मैं ट्राइबल तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ट्राइबल जो शब्द है वो एक अपवाद है जो ब्रिटिशर्स द्वारा उत्पन्न किया गया था. दे वेर वन अमंग अवर इंडियन कम्युनिटीज. राइट. अब उनको जो है एक तरह से जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका एक अलग प्रकार का शोषण हुआ और उनको समाज से दूर करके रखा गया, ये बोल करके कि ये ट्राइबल्स हैं, ये आदिवासी मूल निवासी टाइप का हम शब्द सब
प्रचलन में आने लगा। आई विल नॉट गेट इनटू दैट। बट ये डोकरा कम्युनिटी को अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा का जो सिल्वर का फिलिग्री वर्क है, या वेस्ट बंगाल का डोकरा आर्ट वर्क है, और दक्षिण भारत का जो ब्रॉन्ज, जिसके जो नटराजा और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के जो आकृतियां हैं, कांस्य धातु से, मिश्र धातु से जो बनता है, वो प्रक्रिया बनाने की जो तकनीकी है, वो यथावत वर्तमान काल तक चलती आ रही है। कोई आप में से बता सकता है कि किस तकनीकी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके माध्यम से ऐसे काम से की आकृतियां बनती हैं? कैन somebody give me a guess? What is the name of the technology by which these kind of bronze artifacts are produced? बिना गूगल सर्च किए अगर आप बोल सकते हैं तो आई विल बी रियली हैप्पी। हेलो। या डॉक्टर हेलो विश्वेश्वर, डॉक्टर विश्वेश्वरी तिवारी जी सर। बोलिए। ये ये हाँ जी, हाँ जी, ये पहले तो सिर्फ वैक्स से बनाया जाता है सर। इसका हाँ, वैक्स से ये सारी प्रोसेस शुरू होती है। वैक्स से वेरी बनाने के गुड, बाद इसका मोल्ड निकाला जाता वेरी गुड। है। हेलो। उस टेक्निक का नाम क्या है? आज हम उसको, उस टेक्निक को किस नाम से जानते हैं? ये तो मेटल कास्टिंग के वर्क है सर। मेटल कौन सी? कास्टिंग के नाम से ही जाना जाता है। नहीं, कास्टिंग तो एक मेटल कास्टिंग। जनरल मेटलर्जिकल टर्म हो गया है। कास्टिंग इज यूज्ड फॉर सेवरल कॉन्टेक्स्ट, बट दिस हैज गॉट अ वेरी स्पेसिफिक नेम व्हिच इन्वॉल्व्स वैक्स। यू आर राइट ऑन दैट। आपने प्रोसेस तो बता दिया, बट उस प्रोसेस का जी नाम जी। के पीछे एक थोड़ा वो। वैसे मैं पेंटिंग से रिलेटेड हूँ। हम्म अच्छी बात है, आपने तो इस कम से कम इस टेक्नोलॉजी के टेक्निक के बारे में डिटेल वैक्स का तो आप परिचित हैं, अच्छी बात है। प्रोसेस जानती हूँ। दिस प्रोसेस इज जानती हूँ कॉल्ड, सर मैं सॉरी, इसका। क्या? प्रोसेस जानती हूँ इसका सर मैं सिर्फ। आप प्रोसेस से परिचित हैं, अच्छी बात है। थैंक यू। इस जी जी सर। इस टेक्निक को हम आज अपने पाठ्यक्रम में भी और बहुत सारे लेक्चर्स में भी, यहाँ तक कि परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में अगर आर्ट एंड स्कल्पचरी का कोर्स भी है तो वहां पे भी इसको जिस नाम से जाने जाते हैं उसका नाम है लॉस्ट वैक्स मेथड। अब कोई अपने आप हाँ जी, हाँ को जी। थोड़ा ज्यादा बुद्धिजीवी दिखाने का प्रयास करेगा तो लॉस्ट वैक्स मेथड के बाद जो है, हाँ ये जरूर कहेगा या कहेगी कि ये फ्रेंच में सिरे पेर्ड्यू नाम से जाना जाता है। अब विडंबना मेरे जैसे जी जी। तथाकथित पिछड़े वर्ग के लोगों का ये विडंबना है कि ये हमारे भारत में इसको मधु उच्चिष्टान विधि के नाम से जाना जाता था। ये अब जिस नाम से हमें प्रक्रिया का भी बोध हो जाए, अगर वो नाम हम प्रयोग करें, तो ये अभी जो मेरे सामने, हमारे सामने ये चुप्पी का जो प्रदर्शन था वो कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि वैक्स का मूल शब्द क्या है? अगर आप मोम बोलेंगे, मोम एक पर्शियन शब्द है। भारत का मूल शब्द वैक्स का कुछ कोई हमें बता के दिखाइए। सर हमारे पास इसमें बप्पा माजी भी है। डॉक्टर बप्पा माजी, जो कल्चर से रिलेटेड है सर। मैं चाहूंगी कि वो इसके बारे में एक्सप्लेन करें। ठीक है विश्वेश्वरी जी, आप माइक को म्यूट कर लीजिए। जी जी, अ, थैंक यू। ये सिंपल, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन है। आप में से अधिकांश मेरे ख्याल से हिंदी भाषी हैं। वैक्स का मुझे कोई शुद्ध हिंदी शब्द बताइए। हिंदी शब्द तो मोम है सर। मोम नहीं होगा सर उसका हिंदी शब्द मोम। शायद आपने अभी, आप अभी जगे हैं या अभी सुन रहे हैं, मैंने खुद मोम बोल दिया था। ये भी बोला था कि मोम हिंदी शब्द नहीं है, वो पर्शियन से लोन वर्ड है। ओह सॉरी सर। सर मराठी में इसको तो मेन विचार बोलते हैं। वो मोम का ही एक मेन। अपभ्रंशित शब्द है। लाख गोंद विजय, गोंद तो लाख गोंद कहते हैं। गोंद बिल्कुल नहीं, गोंद बिल्कुल अलग चीज है। जी जी। एनीवे, ये मधुचिष्टा प्रदर्शन, शब्द। ये आपसे पूछने का, आपको आपका वाइवा कंडक्ट कराने का उद्देश्य नहीं था मेरा। ये कहने के लिए कि कैसे शब्द, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे ये वस्तु प्रयोग ना आता हो वैक्स का।
बट जिस शब्द से हम उसको संबोधित आज कर रहे हैं, आज से 500 साल पहले वो शब्द प्रचलन में था ही नहीं। मधोच्चिष्ट, ये एक शब्द है वैक्स के लिए। अगर हम पुराने शब्दकोश लेकर के देखेंगे, जो पारंपरिक शब्दकोश है, उसमें हमें ये मिलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे इस वस्तु का प्रयोग तो करते थे, तभी इस विधि का नाम क्या आया? मधु उच्चिष्टान विधि। मधु उच्चिष्टान विधि वो क्या है? जैसे डॉक्टर विश्वेश्वरी जी ने बताया कि अगर मुझे बहुत ही बारीकियों से किसी आकृति का निर्माण करना है, जैसे ये देवी का मूर्ति है जिनकी साड़ियों के जो चुन्नट है वो तक दिखाई दे रही है यहाँ पे, या फिर ये हड़प्पा का जो ये जो चूड़ियां हैं वो उनके ऊपर तक गई हुई है, इसमें जो बारीकी को दिखाना है वो तो कास्टिंग के, इनफैक्ट मिट्टी से बने हुए कास्ट में भी वो संभव नहीं है। ये मोम से पहले ये आकृति पूरी बनाई जाएगी। जो यहाँ पे कलाकार है या मूर्तिकार है, वो अपने परिकल्पना से उस पूरी मूर्ति का निर्माण पहले मोम से, वैक्स से करेगा। और वैक्स क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, उसमें बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स तक वो ला सकता है। फिर वो बनाने के बाद उसमें बहुत ही चिकनी मिट्टी का एक लेप लगाया जाता है, जो कि एक सॉफ्ट कास्ट बन जाता है। वो मिट्टी का लेप जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर एक ठोस मिट्टी का परख चढ़ा करके उसको एक तरह से भट्टी की तरफ है। और इन सब में ऊपर से जो है वो पतले मिट्टी के परख पे भी एक छोटा सा छेद, और वो जो उसके ऊपर जो मिट्टी का जो आवरण है, लेप बहुत ही थिक सॉइल का जो लेयर होगा, उसमें भी एक छोटा सा छेद छोड़ देंगे। अब ये बन करके जब तैयार होगा, जब मिट्टी सूख जाएगी, इसको भट्टी में नहीं डालेंगे, केवल धूप के अंदर, धूप के नीचे सुखाएंगे। जब ये मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी, मान लीजिए 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो जो पिघली हुई कांस्य है, जो पिघला हुआ धातु है या मिश्र धातु है, उसको उस छेद के द्वारा अंदर डालेंगे। तो क्या होगा? जैसे जैसे वो पिघला हुआ धातु या मिश्र धातु उस छेद के माध्यम से वो मोम के संपर्क में आएगा, तो वो मोम के पुतले को पिघलाता हुआ जाएगा। और पिघला करके क्या होगा? नीचे से भी एक छेद दिया जाता है जहां पे मोम निकलता जाएगा, और जहां जहां वो मोम था वहां पे ये मिश्र धातु जो है रह करके, क्योंकि टेम्परेचर डाउन है, वो सॉलिड फॉर्म को अचीव कर लेगा। और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये मिट्टी के इसको ढांचे को निकाल करके हमें वो सॉलिड मेटल का वो मिलेगा। अब इसमें भी इंजीनियरिंग रेवोल्यूशंस हुए हैं हमारे अतीत में भी। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये तीन जो आकृतियां देख रहे हैं, डांसिंग गर्ल फ्रॉम हड़प्पा, अथवा ये जो देवी और नटराज की जो चोला पीरियड के हैं, ये ठोस हैं अथवा खोखले हैं। अधिकांश जो ये तीन दिखाए गए हैं, चित्र से तो दिख नहीं पाएगा, बट जिस तकनीकी से ये बना है ये ठोस मूर्तियां हैं। अब इसी में जो डोकरा समूह का जो बनता है आकृति, उनपे बाद का ये विकास को माना जाता है कि उनके अंदर ऐसी एक विकास हुई उस समूह में कि वो खोखला भी बनाना शुरू किए। तो दैट इज समथिंग मार्वल इन द डेवलपमेंट ऑफ कास्टिंग। तो खैर, इसमें सबसे बड़ी बात, ये तो मेटलर्जिकल कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेकिंग द ब्रॉन्ज इटसेल्फ, बिकॉज ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। टिन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुछ आप में से लैंग्वेज के होंगे, ऐसा कोई हमारे वांग्मय में शब्द नहीं है टिन के लिए। अधिकांश लोग जो टिन के लिए शब्द प्रयोग करते हैं वो तो टिन ही बोलते हैं उसको। या फिर एक शब्द अगर आप झारखंड, बिहार के साइड वालों से बात करेंगे तो एक जो प्रचलन में है वो है रांगा। रांगा कहीं कहीं पे प्रचलन में है टिन के लिए, बट ये भी हमारे 500 साल 600 साल पहले टिन के लिए ये शब्द कभी नहीं यूज होता था। वैदिक काल से लेकर के उपनिषदिक काल तक त्रपु, ये शब्द को हमें देखने को मिलता है।
खैर, उसी कॉपर के मिश्र धातु में जो दूसरा बहुत ही प्रमुख जो मिश्र धातु है वो है पीतल, जो कि ब्रास, और कानपुर से अधिक दूर नहीं मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी भी बोलते हैं, चिरादि काल से वो क्षेत्र और ये वेस्टर्न यूपी, इनफैक्ट द होल ऑफ गैंजेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा, ब्रास और ब्रॉन्ज में भी वो बहुत ही माहिर थे। ब्रास इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज ब्रास या पीतल ऐसा मिश्र धातु है जो कि कॉपर विथ जिंक, इसका मिश्रण ब्रास को देता है। अब ब्रास का जो प्रचलन है वो हमें वैदिक काल से मिलता है। कैसे मिलता है? जो 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 शब्द प्रयोग हुए हैं इस पीतल को संबोधित करने के लिए, उससे पहले पीतल, दो तरह के पीतल बनते हैं। क्या है? एक, उसका मैं हिंदी शब्द तो नहीं जानूंगा क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर में लोगों ने इसको छापा है, तो वही शब्द को मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा। सीमेंटेशन और एक्सीडेंटल ब्रास एंड इंटेंशनल ब्रास। जो सीमेंटेशन प्रोसेस है उसके अंतर्गत जो पीतल बनता है उसको एक्सीडेंटल पीतल बोलते हैं, और जो मिक्सिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो पीतल बनता है उसको इंटेंशनल ब्रास, संकल्पित पीतल, और पहला वाला एक्सीडेंटल पीतल। अब एक्सीडेंटल पीतल क्या होता है? अब मान लीजिए 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे पूर्वज कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। कॉपर, अपने कॉपर सल्फाइड, पाइराइट्स, सल्फेट, ऑक्साइड, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें से ऑक्सीजन या सल्फर को निकालना होता है ताकि कॉपर कॉपर की तरह प्रस्तुत हो। अब उसी को हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले तो लोगों को कॉपर के डिफरेंट ओर्स के बारे में पता था। अब अलग अलग ओर, सल्फर को निकालना है उसकी विधि अलग होगी, और ऑक्सीजन को निकालना है उसकी विधि अलग होगी। लेकिन ये विधियां अलग होने के बावजूद भी अंत अंततोगतः उनको कॉपर ही प्राप्त हुआ। ये नॉलेज भी था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज है, क्योंकि दिस इनडायरेक्टली टॉक्स अबाउट द एलिमेंटल थियोरी दैट इज एट्रीब्यूटेड टू जॉन डाल्टन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। सो दैट अपार्ट, जो यहाँ पे जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते होते हैं तो 2000 years बैक दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। हो सकता है एक्सीडेंटली जिंक का भी ओर जो है वो प्रोसेस हो रहा है साइमल्टेनियसली, और जब ये कॉपर और जिंक के केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण ये एक्सीडेंटली मिल जा रहे हैं अपने आप, और जो निकल के आ रहा है वो वास्तव में कॉपर नहीं है, वो जिंक है, वो ब्रास है। तो ये एक्सीडेंटल ब्रास कहलाएगा। बट ये इस एक्सीडेंटल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग में लोगों ने वर्तमान काल में शोध के माध्यम से प्राप्त किया है कि ऐसे पीतल में मैक्सिमम आप 12 से 15% ही जिंक की मात्रा को पाएंगे। लेकिन वही अगर आप मिक्सिंग प्रोसेस के तहत पीतल बना रहे हैं तो उसमें 30%, 35% तक भी आप जिंक को देख सकते हैं वैसे पीतल में। तब लेकिन मिक्सिंग प्रोसेस के लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि मेरे पास शुद्ध कॉपर हो और शुद्ध जिंक भी हो, तभी मैं उस प्योर कॉपर एंड प्योर जिंक को रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मिला पाऊंगा, जिसके कारण आई कैन प्रोड्यूस ब्रास ऑफ हाई जिंक क्वांटिटी। और ये तभी संभव है जब मेरे पास प्योर जिंक हो, मतलब जिंक का टेक्नोलॉजी भी आना चाहिए, है ना। तो इसी में और एक क्योंकि लिंग्विस्टिक का बात आता है तो ब्रास के भी विभिन्न संबोधन है। रीति, रीतिका, पित्तल, आरकूट, आर स्वर्णक कृत। तो समय कम है तो इसलिए मैं इस लिंग्विस्टिक नुआंसेस पे नहीं जाऊंगा। ये सब दिखाने के लिए कि कैसे हमारे पास ब्रास जो है चिरादिकाल उपनिषदिक और वैदिक काल से चलता आ रहा है। तदाह वैश्वानरम
पित्तलम। सो उसी तरह से यहाँ पे भी पित्तल का उल्लेख आया है, जो कि कात्यायन श्रोत सूत्र पे है। स्वर्ण का कृत, इस शब्द का भी प्रचलन में आया है। तो ये वैंडा मॉर्टन का रीसेंट पेपर है। शी इज अ वेरी गुड मेटलर्जिस्ट फ्रॉम नॉर्वे आई थिंक, जिन्होंने ही इस सवाल का समाधान निकाला कि इस पूरे विश्व में कौन, हु फर्स्ट मेड ब्रास इंटेंशनली एंड वेयर। और इस पूरे उनके शोध पत्र का जो निष्कर्ष है, उन्होंने इस समाधान पे पहुंचा कि भारत में ही सबसे पहले इंटेंशनल ब्रास का वो प्रयोग हुआ, और यहीं पहले ये बना। उन्होंने डेट का भी, बस उन्होंने दो शब्द पूछा, हु एंड वेयर। डेटिंग का इट्स स्टिल ऑन द प्रोसेस, बट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जैसे अतरंजी खेड़ा, एक नॉर्थ इंडियन प्लेस है, यूपी में ही है, जहां पे लोगों को ब्रास का आर्टिफैक्ट मिला है जिसमें 36% जिंक पाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्वज हाई जिंक ब्रास, जो तभी पॉसिबल है अगर मेरे पास प्योर जिंक होगा, उस पे भी वो निपुण थे। अब इसमें जिंक भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अतर अतरजी खेरा जैसे पीतल के वस्तुओं को प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, तो आपके पास जिंक का भी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब जिंक के शब्द भी बहुत ही विस्मय है, मतलब एक बहुत ही रोमांचक शब्द है ये। आज जिंक को बोलचाल में जस्ता बोलते हैं, उत्तर भारत के अधिकांश जगह में, मराठी में भी इसको जस्ता बोलते हैं। जस्ता एक्चुअली देखा जाए तो ये यशद शब्द का अपभ्रंश है। अब य का ज में परिवर्तित होना, जब यूपी में ही, जब वेस्टर्न यूपी से पूर्वांचल बिहार में जाएंगे, तो ये जो यशोदा थी दिल्ली मथुरा में, वो यहाँ तक आते आते जशोदा बन जाएगी। तो और उसी तरह गुजरात में भी ये जशोदा बन जाएगी। जय, ये यश जो है वो जश, और उसी से जश्न ये शब्द आता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि य का ज में परिवर्तित होना बहुत ही स्वाभाविक है, और ये परिवर्तन पाणिनि के समय से ही होता आ रहा है। इसको टेक्निकली यजयोर अभेदा ऐसे नाम से इसको बोलते हैं। तो यशद, यशद का भी बहुत अच्छा नाम है। इसकी इसकी जो व्युत्पत्ति में देखेंगे यशद का, तो यशम ददाति इति यशद। अब यश, यहाँ पे यश के बहुत सारे अर्थ हैं, बट यशम ददाति इति में ये अर्थ, शब्द का अर्थ है कि जहाँ जो प्रकाशमान है, और प्रकाशमान धातुओं में से सोना है, चांदी भी है, ये ऐसा प्रकाशमान धातु है कि वो चांदी जैसा चमकता है, तभी इसको यशम ददाति इति यशद नाम से इसको ये जाना गया। और साउथ इंडिया में इसको, प्राचीन संस्कृत के वाङ्मय में भी जिंक का संबोधन तुत्थ, तुत्थ जो शब्द है, आज वर्तमान काल में तुत्थ जो है वो कॉपर सल्फेट है, लेकिन अर्थशास्त्र के समय से पूर्व, उससे पहले तुत्थ शब्द जिंक और जिंक ऑक्साइड के लिए प्रयोग किया गया था। उसका एविडेंस क्या है? वर्तमान काल में दक्षिण भारत के, या मेरे मातृभाषा जो तमिल में, जिंक को आज भी तुत्त इस नाम से जाना जाता है ये। और क्योंकि साउथ इंडिया के पोर्ट से चाइना का कनेक्शन बहुत पहले से था, चाइनीज लैंग्वेज में जिंक को तुतनाग इस नाम से जाने जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक का भी इसमें नुआंसेस बहुत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, आप में से अगर भाषा शास्त्री कोई है, तो आप भी इन सब ग्रंथों को लेकर के किसी संस्कृत विद्वान के साथ बैठ करके इस ऐसे जैसे ऐसे शब्दों के बारे में भी गहन शोध कर सकते हैं। ये सब इसलिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी रिसेंटली जब मैंने एक पेपर को भेजा था, रिव्यूअर का एक कमेंट आया पूरे पेपर को रिजेक्ट करते हुए, कि उनका केवल एक कमेंट था कि लेखक, ये मैं ही लेखक था इसमें, कि इनको इतना भी नहीं मालूम है कि तुत्थ कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, और लेखक ने इसको जिंक ले लिया है, तो इसीलिए ये पेपर गलत है। फिर मुझे एडिटर को एक तरह से लेक्चर लेना पड़ा एडिटर का, कि भैया देखो,
तुथ जिंक का ही एक पर्याय है प्राचीन भारत में। अब ये रिव्यूअर को ये जानकारी नहीं था, और उस आधार पे अगर आप रिजेक्ट करोगे तो ये कहाँ से न्याय है ये। फिर अंततोगति कल ही की बात है कि जब उस पेपर के एक्सेप्टेंस का न्यूज़ आया, तो वर्तमान काल में भी ऐसे बहुत ही छोटे शब्द को लेकर के भी बहुत बड़ा परिणाम आ सकता है। ठीक है, तो एनीवे समय कम है तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाऊंगा। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इट्स नॉन ट्रिवियल प्रोसेस बिकॉज जिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट मेटल। तमाम अन्य धातुओं के कंपैरिजन में जिंक इज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट मेटल, of course not comparing it to cesium or sodium, which are which were not in prevalence during that time. But zinc melts at a lower temperature, so much so that if you extract zinc in an open furnace, all the zinc will evaporate. So you needed an indigenous closed system extraction, which is what is an artistic depiction here. उसमें ऊपर में जिंक के ओर को खरपर बोला जाता है टेक्स्ट में। वो खरपर को भर देते हैं और उसके साथ कुछ अ, भेषज वस्तुओं को भी साथ, प्लांट मटेरियल जो कि कार्बन के सोर्स है उसको भी रख देते हैं, और आग को ऊपर से दिया जाता है। और जब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये रिएक्शन जो मैंने दिखाया, ये खरपर है, वो अल्टीमेटली जब जिंक में रिड्यूस होगा तो अ, वो क्या होगा, ऊपर एस्केप नहीं होगा, बट ग्रेविटी के वजह से वो जिंक लिक्विड फॉर्म में या नीचे आएगा, या वेपर फॉर्म में भी हो तो नीचे आएगा। और नीचे क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट है, कोल्ड है, तो नीचे आपको प्योर जिंक सेटल्ड मिलेगा। जब आप इसको एक सप्ताह बाद आकर के ऊपर वाले भट्टियों को अलग करके जब जमीन के नीचे से ये घड़े को निकालेंगे तो आपको प्योर जिंक मिलेगा। तो ये प्रक्रिया वास्तव में भारतीयों ने ही इसका खोज किया था, और इसी तकनीक को दुर्भाग्यवश ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में अपनाया। और आज टेक्स्ट बुक्स में, इवन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेटलर्जी टेक्स्ट बुक में भी उस ब्रिटिशर्स के नाम से इसको इस उस ब्रिटिशर को श्रेय देते हुए इस टेक्निक को उस ब्रिटिशर्स के नाम से जोड़ करके पढ़ाया जा रहा है। ये विडंबना इसलिए है क्योंकि चाइनीज जो है छाती ठोक के बोलते हैं कि हमें जिंक की जो टेक्नोलॉजी है भारत से ही मिली है। ये कब बोल रहे हैं? ये 5th सेंचुरी में बोल रहे हैं। और लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हम मतलब यहाँ पे मैं उस पाठ्य पुस्तक के रचयिता को संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ, मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसको हम दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को श्रेय देते हुए इस प्रोसेस को हमारे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये आधुनिक विडंबनाओं में से एक है। बहुत सारे ऐसी विडंबनाएं हैं, बट उनमें से विडंबना में से कम एक सकारात्मक चीज ये है कि एक गोरे ने, यहाँ पे गोरा है पीटी क्रैडॉक, जिसको शायद ये भी मिला था, पद्मश्री भी मिला था। ये गोरा है सौभाग्यवश, और मुझ जैसा कोई भारतीय नहीं है। तो इसने क्या कह दिया? इसने प्रमाणित कर दिया कि हमारे भारत में मुख्य रूप से जावर, राजस्थान के उदयपुर इलाके से tons and tons of thousands of tons of zinc was produced, और अर्लीस्ट डेटेड जिंक माइंस है, और अर्लीस्ट नोन सेंटर फॉर जिंक प्रोडक्शन। तो ये जब एक गोरे ने प्रमाणित कर दिया तो भैया अभी तो कम से कम हमें मान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कभी भी ये दावा तो छोड़िए, मैंने इसका उल्लेख भी नहीं किया कि हमारे प्राचीन भारतीय धातु शास्त्रज्ञों को फेस डायग्राम की जानकारी थी। अब जो साइंस से है वो फेस डायग्राम समझेंगे, जो साइंस से नहीं है, आप इतना समझ लीजिए कि वर्तमान काल में जितने भी मिश्र धातु बनते हैं वो इस फेस डायग्राम के माध्यम से ही बनते हैं। ये एक ऐसा सारांश में चित्र है जहां पे अगर मुझे कॉपर और जिंक को मिलाना है, और मुझे ये मान लीजिए कि बीटा रीजन में जाना है, तो मुझे मालूम है कि मुझे 400 से लेकर के 800 के टेम्परेचर के बीच में रहना है, और कॉपर का मान लीजिए 45% और जिंक का जो है वो 55% मुझे मिलाना है। तो जिंक का, कॉपर का 45,
जिंक का 55 और मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसमें जो मुझे ब्रास मिलेगा वो बीटा फेस ब्रास मिलेगा। आज ये ऑटोमेटेड है फेस डायग्राम के माध्यम से। मैं ये कदापि ये नहीं कह रहा हूं कि प्राचीन भारतीय धातु शास्त्रज्ञों को इसका पता था। ये आधुनिक इंजीनियरिंग मार्वल है। वो मिश्र धातु बनाते थे, उसके बहुत सारे उदाहरण हमें उत्खनन से भी मिले हैं और कल्चरल कंटिन्यूटी से भी मिले हैं। कैसे बनाए वो अभी हमें खुद और रिसर्च करना बाकी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2000 पहले बनाई हुई वस्तुओं का के अवशेष को लेकर के। उस पे हम प्रोसेस हिस्ट्री को रिक्रिएट कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है और असंभव भी है। तो ये मैं कभी भी आपके अंदर ये इंप्रेशन नहीं देना चाहूंगा कि फेस डायग्राम भी हमें पता था, नहीं, ये गलत है। आयरन मेटलर्जी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, दिल्ली का आयरन पिलर तो कुतुब मीनार तो बहुत ही प्रचलन में है। अगेन क्विज क्वेश्चन टू ऑल माय पार्टिसिपेंट्स, बताइए कि ये जो लौह स्तंभ है ये पहले कहाँ था? चिरादि काल से क्या ये मेहरौली में स्थित था? कोई प्रयास कीजिए। बार बार मेरे सवाल पूछने का उद्देश्य आपकी जानकारी को परखने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं इस प्रश्न से संकेत दे रहा हूं कि कैसे हमारी पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम और जो भी पॉलिसीज हैं हमें हमारे ही अतीत के बारे में कैसे वंचित रखे हैं। तो मेरा बार बार प्रश्न करना, आप इसको अन्यथा न लीजिए कि आपकी अज्ञानता को मैं परख रहा हूं या अथवा आपके ज्ञान को मैं परख रहा हूं। ये वो उद्देश्य से नहीं है ये प्रश्न। आप सभी लोग भी शिक्षक हैं, बट हमारे पाठ्यक्रम में कभी इन सब बातों को बताई नहीं गई थी, कोई भी कारण रहा हो। ये वास्तव में ये स्तंभ बुंदेलखंड के एक विष्णु के मंदिर में स्थित था। अब ये वहां का ध्वज स्तंभ था अथवा बलि स्तंभ था, ये हमें पता नहीं है। अधिकांश लोग इसको ध्वज स्तंभ मानते हैं, बट उस बुंदेलखंड के रीजन से अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जब आए, इल्तुतमिश उसके बाद जो आए, उन्होंने वहां से उखाड़ करके मेहरौली में रखा। वहां के पहले बहुत ही बड़ा एक जैन मंदिर था, वहां पे इसको, उस जैन मंदिर को ध्वस्त करते हुए रखा। फिर सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी मैंने तो बाद में बोल दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक वो जब आया था तो उसने रखा। फिर उसके जो दामाद जो कि इस वंश को चलाया, इल्तुतमिश, उसने उसके ससुर के स्मरण में, स्मृति में कुतुब मीनार बनाया। अब वो कुतुब मीनार इस जगह को प्रचलित करता है और आज लोग बोलते हैं कि हाँ, आयरन पिलर वहां पे है जहाँ पे कुतुब मीनार बना है। तो ये देखिए हमारी जो जो हमारी सभ्यता की जो स्मृति है वो कितनी नाजुक है। एनीवे, सो आई विल स्किप बिकॉज सोर्ड इज देयर। जो डमास्कस सोर्ड जो वुड्स स्टील से बना था वो इतना प्रचलन में था पूरे विश्व में, लगभग आज से 600-800 साल तक भी, क्योंकि लोग पूरे दुनिया में जंग लड़ते थे, जंग में दुश्मन को मारने के का ही उद्देश्य होता था। और ऐसा उपकरण चाहिए, ऐसा औजार चाहिए जो बहुत सारे लोगों को घायल कर सके, जो हल्का हो ले उठाने में, चलाने में, और उसकी जो धार है, जो उसकी जो काटने की जो क्षमता है, उसमें उसमें क्षीणता ना आए, वो सब प्रोड्यूस सेटिस्फाई करता था हमारे भारत में प्रोड्यूस हुआ स्टील, जिसका हमारे पास हिंदी में कोई शब्दकोश नहीं है, इसको हम इस्पात बुलाते हैं, वो गलत है। वो जो जिसकी बहुत ही पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज हैं, अब उस पर मैं टेक्निकली नहीं जाना चाहूंगा, बट इसको डमास्कस सोर्ड बोलते हैं क्योंकि डमास्कस एक जगह का नाम है, सीरिया। तो तो उस पर हम नहीं जाते, बट ये भी हमारे भारत का एक बहुत बड़ा देन था। और कानपुर शहर को इस बात से गर्व होना चाहिए कि प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम, जो कि जिन्होंने अपना पूरा करियर और लाइफ कानपुर में बिताया, दुर्भाग्यवश वो बहुत ही कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, बट वो कैंपस में ही थे जिन्होंने इस एरिया में बहुत ही विशाल और बहुत ही गहन शोध किया था।
और अगर कानपुर यूनिवर्सिटी इस इनके स्मरण में भी कुछ अगर व्याख्यान अथवा शोध करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो हमारे पूरे भारत के लिए और उनके लिए एक अच्छा एक कदम होगा। एनीवे, स्टील के संदर्भ में ये एक ऐसा चित्र है जो रांची के सेल ऑफिस के हेड ऑफिस में ये पेंटिंग है। पेंटिंग तो खैर बाद में किसी ने बनाया है, बट यहाँ पे ये राजा पुरु और अलेक्जेंडर का जो भेंट है उसको दर्शा रहा है, जहाँ पे पुरु जो है एक तलवार भेंट कर रहा है और ये तलवार उसी स्टील से बना है। उससे ज्यादा रोमांचक है उसके पीछे जो उसका सेवक है, उसके हाथ में जो वस्तु है, दिखने में तो एक सोने की एक डब्बा, सोने का डब्बा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर स्टील का ही एक ईंट रखा है। ये बाद के शोधकर्ताओं ने लिखा है इसके ऊपर। तो देखिए कि कैसे हम हमारे अतिथियों को, जो कि पहले आक्रमणकारी भी रहे होंगे, उसके बाद पश्चात भी अगर उनसे सामंजस्य बैठा, अतिथि सत्कार के रूप में उनको भेंट देते हुए सोने के डिब्बे में लोहे का एक ईंट देते थे। और 2000 साल के पश्चात आज वर्तमान काल हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हम बाजार से धनतेरस के लिए अगर हम एक नथनी भी खरीद सोने की खरीदें तो उसको तुरंत प्रयोग करने के बाद बैंक के एक लोहे के लॉकर में जाकर के रखते हैं। तो ये है हमारी स्थिति है। तो अभी मैं इन सब से थोड़ा स्किप करते हुए सीधे अ, सीधे मैं इन सब को स्किप करता हूँ। आई विल स्किप ऑल दिस थिंग्स। I will, because I will have to give some time to interaction. Sorry, it took a longer time, perhaps carried away in between. I will skip all these things. They are interesting. How to make nanomaterials from the traditional methods. एक ये है कि ये मेरा लास्ट 2 स्लाइड्स में से है। ये जो राइट हैंड साइड में विलियम रामसे का जो स्टेटमेंट था, जो कि नोबेल लॉरेट थे, उनका था कि द कंट्री विच इज इन एडवांस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन केमिस्ट्री विल आल्सो बी फॉरमोस्ट इन वेल्थ एंड इन जनरल प्रॉस्पेरिटी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी आप ये जो आज से 20 साल पहले जो पेपर पब्लिश हुआ था एंगस मैडिसन का, उसका अगर आप देखेंगे, एंगस मैडिसन को शायद वर्ल्ड बैंक ने या फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, दोनों में से किसी एक संस्थान ने ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप पूरे विश्व का जो जीडीपी है, पिछले 2000 सालों का जीडीपी को आप स्टडी कीजिए। तो उसमें इन्होंने प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उसी को लिया था। और इसमें से अगर आप देखेंगे जो पिछले 2000 सालों में कम से कम 1500 साल तक केवल भारत और चीन ही ऐसा देश था, ऐसे देश थे जो पूरे विश्व के जीडीपी को लीड कर रहे थे। और ये तभी संभव है जब उनमें मटेरियल्स के मेटलर्जी और केमिस्ट्री का नॉलेज सक्षम रहा हो, तभी वो मटेरियल्स को जनरेट कर सकते हैं। और प्रॉस्पेरिटी हमेशा मटेरियल से आती है। और इसी को जोड़िए रामसे के स्टेटमेंट से, जिन्होंने कहा था कि द कंट्री विच इज इन एडवांस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन केमिस्ट्री विल आल्सो बी अ फोरमोस्ट वेल्थ इन जनरल प्रॉस्पेरिटी। तो ये भी एक परोक्ष रूप से प्रमाणित करता है कि कैसे हमारे भारत के एंशियंट और मिडिवल पीरियड में केमिस्ट्री मेटलर्जी चरम स्तर पे रहा होगा, जिसके कारण हमारे जो आर्थिक जो बल है वो सक्षम था, और जिसके कारण हम वर्ल्ड जीडीपी को लीड कर सके। तो एक संभवतः आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, ठीक है, अब पिछले सवा घंटा से मैं आपको भारत के अतीत के छाती ठोक करके अतिशयोक्ति परहैप्स कर रहा हूं, लेकिन आज हमारी विडंबनादायक स्थिति ऐसे क्यों हो गई है? समस्याएं हैं, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जहां पे समस्याएं नहीं है, बट उन समस्याओं को हम समाधान देने के कारण कैसे उसको हम व्हाट आर द रीजंस वी एट्रीब्यूट टू दोस प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीयों को इस बात बारे में बहुत बहुत ही डीपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस लीड्स टू लॉट ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। Yes, we agree we have a lot of problems by which we have lost many of these things, but why did we lose them? Or what was the reason and why are we not able to regenerate them?
के संकेत, उसके संकेत के लिए ही मैं एक लघु कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तथाकथित बुद्धिजीवी वैज्ञानिक थे मेरे जैसे, जिन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग था? एक मेंढक को उठाया और उसको बोला कूदो। मेंढक कूद गया। और फिर एक पैर को काटा मेंढक का, बोला मेंढक को कूदो। फिर मेंढक कूद गया। फिर दूसरा पैर काटा, तीसरा पैर काटा। 3 पैर काटने के बाद भी बोला मेंढक को कूदो, तो कूद गया। जब चारों पैर काटे मेंढक के, और फिर उस वैज्ञानिक ने बोला कि मेंढक को कि कूदो, और मेंढक ने कूदा नहीं। तो ये था समस्या उसका। तो उसने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब मेंढक के चारों पैर काटे जाते हैं तो मेंढक बहरा हो जाता है। तो ये, इससे मैं ये संकेत देना चाह रहा हूँ कि समस्याएं हैं, बट उन समस्याओं के समाधान देने हेतु हम किस निष्कर्ष को पे पहुंच रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैथमेटिक्स एक अच्छा एक एग्जाम्पल है जहां पे हम ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स को बहुत ही सहज रूप से अपनाते हैं। कुलार्क्स कंजेक्चर था, बट मैं टाइम नहीं लूंगा। तो क्या वही मेंटालिटी टू गेट दिस? मैथ्स में बहुत सारे ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी हम बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जो अपना पूरा लाइफ जो है उन ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिता देते हैं। तो इस तरह से जो प्राचीन हमारे भारतीय ज्ञान के भंडार में जो विज्ञान और तकनीकी के विषय हैं, उनको समझने के लिए भी बहुत सारे ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे प्राचीन भारत में मिक्सिंग प्रोसेस के तहत इंटेंशनल ब्रास कैसे बना, ये एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम है। बट इस पर जब तक हम विचार करके शोध नहीं करेंगे, हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके लिए एक कारण दे देना कि एक ऐसे विशेष समूह विशेष के अंतर्गत ही ये रह गया था, जिसके कारण ज्ञान का अर्जन बट नहीं पाया, ये कहना जो है उसी तरह होगा जो वैज्ञानिक 4 पैर काटने के बाद बोला कि मेंढक बहरा हो जाता है। तो इसी से मैं इसको समाप्त करते हुए आप सभी को समय के लिए धन्यवाद देते हुए, once again thanking the organizers for this FDP, Brihat as well as the Kanpur University for giving me this time. मैं देख रहा हूँ कि 11:58 हो गया है और मेरे पास समय है। अगर आप श्रोताओं के मध्य में कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो, स्वागत है। जो अगर मैं उसका समाधान दे पाऊँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा। Thank you so much, sir, for a wonderful session. I would like to request the participants to please give their inputs, valuable inputs, and if they have any questions that they would like to raise or discuss some topics with sir, so please kindly do so. नमस्कार सर। नमस्ते। बोलिए मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते। आ- आपका लेक्चर मैंने सुना पिछले घंटे से, और लेक्चर बहुत अच्छा भी लगा। जो आपके बाद का लेक्चर है मुझको देना है। मैं अपना नाम आपको बता दूं, डॉक्टर रत्न ऋतु मिश्रा, कानपुर यूनिवर्सिटी से। और जो ये इस समय ये अभी चल रही है, इसका भी मैं भी भाग हूँ। आपका जो, मेरा कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है आपसे, लेकिन जो मेरे मन में विचार है वो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। जो आपके लेक्चर का प्रारंभ था और जो आपके लेक्चर का समापन है, उससे काफी आधार मुझे अपने व्याख्यान को आगे देने में मिलेगा, जो कि फिलॉसफी पर बेस्ड है। पश्चिम की संकल्पना जो क्राउन ऑफ द क्रिएशन की है ह्यूमन बीइंग की, अशरफ उल मखलूकात, ये वहीं से संकल्पना आई है कि सृष्टि जो है वो मनुष्य की आवश्यक समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। जो शुरू में आपने कहा, बहुत ही स्पष्ट और आकर्षक वो वक्तव्य था आपका। और जो समापन भी, कि जिस तरह के निष्कर्ष आज तक हमने अपने ही विषय में निकाल लिए हैं दूसरों से प्रभावित होकर,
तो हमें अपने दर्शन में, अपने फिलॉसफी में थोड़े से अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और आप हमारे एफडीपी में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी टीम एकेडमिक्स का हिस्सा हूँ, तो आप जैसे लोगों को दोबारा सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं इस पे, क्योंकि आपने विचार व्यक्त किया, प्रश्न नहीं था, तो इसलिए उसका आपके विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद, और आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए भी धन्यवाद। बट इससे मैं एक स्पष्टीकरण एक करना भी चाहूंगा कि हाँ, जो भारतीय सभ्यता है वो इतना विशाल है, और इतने समय पे वो उसका जो समय का भी हम सीमा सही प्रकार से लगा नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी जो वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच था, वो हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तभी एक लोकायात अथवा चारवाक, जिसमें भी ये बोला गया है, जो यद्यपि आप इसको अपने व्याख्यान में भी इसको सुनाएंगे फिर से, लेकिन आपके अनुमति से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो एक चारवाक का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम नीत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये विचारधारा हमारे यहाँ भी थी, बट क्या थी कि ये मेन स्ट्रीम कभी नहीं हुआ। और इससे जी एक और जो दार्शनिक पक्ष हमें देखने को मिलता है कि हमने किसी के मुंह को बंद नहीं किया। जो ये लोकायत अथवा ये चारवाक के जो प्रणेता थे, उनके जान लेने के लिए पीछे कोई भागा नहीं। समाज में था, जो इनके अनुयायी थे, होते होंगे उनके अनुयायी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम जो विचारधारा बनती है वो हमारा बिल्कुल अलग था। जो कि मेरे ख्याल से मेरे बाद की जो वक्ता, जो महोदया मिश्रा महोदया हैं, वो इस पे और शायद स्पष्टीकरण करेंगी, और जिसके माध्यम से हमें उस विचारधारा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और संभवतः ऐसे संवादों से उस परिवर्तन लाने में हम सक्षम हैं। धन्यवाद महोदया। जी जी सर, जितना कर पाएंगे करेंगे उतना। यदि और कोई प्रश्न या टिप्पणी अथवा कोई, यू आर फ्री टू इवन एक्सप्रेस एनी क्रिटिसिज्म और क्रिटिक सेइंग कि ये तो अतिशयोक्ति है, अथवा ये ऐसा भी आपको कुछ लगे तो मेरे ध्यान में लाइए उसको, क्योंकि मुझे समझना है कि कौन सी बात इसमें तथ्य आधारहीन है, या फिर ये तथ्य के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। वैसे भी अगर आपके कोई विचार हो तो स्वागत है उसका। रामनाथन सर जी, आपकी शुरुआत और आपका जो इस सेशन वाला अंत है, ये बहुत ही खूबसूरत रहा है। वो इसीलिए कि आपने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के हमारे जो इतिहास को छेड़छाड़ की गई है, वाकई में बहुत काफी छेड़छाड़ की गई है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। क्योंकि आज हमारा इतिहास हमें जो मिल रहा है, मैंने अ, बहुत से जगह पे ऐसे स्कूलों में मैंने देखा है कि जो पाठ्यक्रम बने हैं, जो स्कूल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं रखकर गलत पढ़ाया जाता है। उसे आज भी सुधार नहीं किया गया है। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसे सुधार करने की पूरी पूरी मेहनत करें, कोशिश हमारी होनी चाहिए। सिर्फ कोशिश ही नहीं, उसे हम 100% करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोग आज की मतलब जो पीढ़ी पढ़ते आ रही है, मतलब जैसे हमारे टाइम से भी हमने भी जो पढ़ा है, हमने भी गलत ही इतिहास पढ़ा है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि हम जो एफडीपी कर रहे हैं, मतलब जैसे हमें बताने के लिए या हमें समझने के लिए हम लोग जो एफडीपी कर रहे हैं, क्या हम लोग ये स्कूल लेवल पर नहीं कर सकते? स्कूल लेवल पर भी ये चीज करनी चाहिए, और वहां भी हमारा धर्म बनता है ये कि हम लोग उन पाठ्यक्रमों को चेंज करवाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम सत्यांश दे सके। हमारी जो सत्य है, हमारा इतिहास जो गवाह है हमारा, वो गवाह हमें आगे लाना चाहिए। क्योंकि हमने आज के कंटेम्प्रेरी फील्ड में जो देख रहे हैं कि झूठ को सच बनाने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन सच को सच साबित करने में काफी
मेहनत लगती है और पूरी जिंदगी लग जा रही है। तो हम क्यों ना हमारी कोशिश ये रहे कि हम स्कूल लेवल पर स्कूल टीचर्स हो गए या स्कूल के जो पाठ्यक्रम बनते हैं, जो सिलेबस उनके बनते हैं, हम वहां से ही सुधार करने की शुरुआत करें। हाँ, यद्यपि ये प्रश्न आप, मैं तो इसका, अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं तो इसका उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के कुछ कमिटीज में भले ही मेरा कभी कभी रहना हो जाता है। बट ये जो प्रश्न है, ये बहुत ही आधारभूत प्रश्न भी है कि स्कूल के लेवल से ही हमें परिवर्तन लाने चाहिए। स्वागत है उसका भी, अभी बहुत सारे प्रयास भी ऐसे चल रहे हैं। लेकिन ये हम केवल दूसरे करें, स्कूल में हो जाए, फिर उसके बाद उच्च विद्या में आए, उसके बाद हम लोग संभालेंगे, एक तरह से पासिंग द बक हो गया है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस डॉक्टर विश्वेश्वरी जी, आपने अपना परिचय पेंटर के रूप में दिया, पेंटिंग के बैकग्राउंड से। और हमारे यहाँ पे जो पेंटिंग स्कूल, जमशेद जी स्कूल जो बॉम्बे का है, वो वही एक स्टाइल, या फिर मैक्सिमम दूसरा स्टाइल। और बाकी सब स्टाइल्स को हम किस नजरिए से देखते हैं? वो फोक फोक के नजरिए से, चाहे वो मिथिला का हो, दरभंगा का हो, या फिर पट्टचित्र बंगाल उड़ीसा का हो। तो जो डिवीजन हम देखते हैं कि एक एकेडमिक आर्ट क्या है और एक फोक आर्ट क्या है। हमारे यहाँ भारत ब्रिटिश आने से पहले मेन स्ट्रीम और फोक का तो कोई डिवीजन था ही नहीं। तो हम, तो ये आर्ट के कॉन्सेप्ट में भी जब हम पढ़ाते हैं, तो क्या हमने हमारे हमारे पाठ्यक्रम में कभी बच्चे जो है शिल्प शास्त्र को कभी पढ़े हैं? सामुद्रिक का लक्षण क्या होगा अगर किसी आकृति को बनाना है? इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म जिसको बोलते हैं रियलिज्म, जो कि मॉडर्निज्म से पहले का जो ये था। या फिर हम जब यूरोपियन प्रोग्रेस को ही बताते हैं कि गॉथिक, फिर रेनाइसा, फिर इम्प्रेशनिज्म, मॉडर्न, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, रियलिज्म, क्यूबिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो ये हम उसी रूपरेखा, उसी लाइन पे लेकर के जाएंगे। हमारे भारत में क्या रॉक आर्ट से लेकर के जो कंटिन्यूटी, क्या इसमें कभी किसी स्टडी हुआ है? किसी ने स्टडी किया है इसको? मंदिर की जो आकृतियां बनी हैं 3 डायमेंशन में, क्या उसका पहले कोई ब्लूप्रिंट 2 डायमेंशन में किसी ने किया है? तो ये सब एक तरह से रेटोरिक क्वेश्चंस हैं, ये केवल आपको संबोधित करते हुए नहीं है, बट दिस इज जस्ट गिविंग अ थॉट कि कैसे अभी हम इन सब विषयों पे भी सोच सकते हैं। अगर नहीं है तो लेट अस वर्क ऑन क्रिएट लिटरेचर ऑन इट। वैसे मेरा गुड। वैसे मेरा रिसर्च एरिया था, मेरा रंगोली पे मैंने पीएचडी की। तो ओ, मैंने 2006 में मैंने एक छोटा सा अवार्ड ले लिया जो पीएचडी के मेरे था। तो मेरा विषय जो रंगोली पे था, तो मैंने इसमें सारा रॉक आर्ट में जो सिंबल्स है वही कैसे हमारे यहाँ कन्वर्ट होते हैं रंगोली के फॉर्म में, और कैसे उसे दहलीज के बाहर जो निकाली जाती है उसे कैसे डिवाइड किया गया, और भगवान के जो दहलीज पे निकाली जाती है उसे कैसे डिवाइड किया गया, कैसे वॉल पे जो बनाया जाता है उसे कैसे डिवाइड किया, क्यों किया गया, इसके बारे में मैंने काफी जानकारी ली। मतलब जैसे मैंने मेरी पीएचडी स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत से ऐसे गांव में जाके मैंने ऐसे पूछताछ की कि रंगोली क्यों डालते हैं, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मतलब ये तो 2001-2 की बात बता रही हूँ। उस पीरियड में भी मतलब कोई हमारे एज के जो लोग थे वो भी ये नहीं जानते थे कि क्यों रंगोली डाली जाती है। मेरी नानी नहीं समझ डालती है, ये, मेरी माँ डालती है, इसीलिए मैं डालती राइट पॉइंट, जस्ट हूँ। बट मतलब ये चीजें जो है ना क्षमा हमें। कीजिएगा कि आई एम इंटरप्टिंग यू, बट जस्ट फॉर वांट ऑफ टाइम, मैं मैं जिस आर्कियोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करता हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट रॉक आर्ट स्पेशलिस्ट हैं। और हम लोग भी इसी एरिया में भी काम करते हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये मेन स्ट्रीम आर्ट में अभी भी ये फ्रिंजेस है। अगर आप आर्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, कोर्स पाठ्यक्रम में है, रंगोली तो उसमें एक एग्जाम्पल की तरह आएगा। जो लेकिन जो थियरीज हैं, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट, कि उसमें कोई परिवर्तन है अभी तक? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रंगोली के बारे में आपने आज से 20 साल पहले से काम करना शुरू किया था। समथिंग वेरी गुड। गुड। कुड यू प्लीज टेल द बेसिक फॉर बिगिनर्स, क्या है ये सवाल? अ, शायद मैं चैट बॉक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ।
अगर आप पूछ लेते, सॉरी, चैट बॉक्स आ गया है। मुझे दिख नहीं रहा है, जिन्होंने कुछ सवाल प्रेस किया होगा, शायद मेरे इंटरनेट की स्पीड की वजह से सर मैं थोड़ा। आपको उनका सवाल बता देती हूँ। ये हाँ, शेख जी ने सवाल किया है दैट कुड यू प्लीज टेल द बेसिक फॉर बिगिनर्स गुड इंडियन नॉलेज सिस्टम साइंस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। He's वेरी asked गुड for क्वेश्चन। The textual resources are very less. Indian National Science Academy has come out with 2 volumes, published in the 60s and republished in 2000, which is called the Science and Technology of India. B.V. सुब्बरायप्पा का ये प्रकाशन इंसा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के संस्थान से है। Ramakrishna Mission has come out with several volumes, if I'm not wrong, some 18 volume of different books. Volume 6 is specifically on ancient Indian science and technology. उसमें 7 जो है वो बायोलॉजी में है, 6 लेकिन केमिस्ट्री मेटलर्जी का 6 में आता है। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो हैं। बाकी बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो ये भी एक अपने आप में चुनौती है कि हाउ टू एक्सेस द लिटरेचर। लिटरेचर आर स्कैटर्ड, और ये तो आई शुड कन्फेस दैट द लिटरेचर इज वेरी लेस, सो वन हैज टू डू इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशंस। मेरे पास एक कंपाइल लिस्ट है, आईकेएस के वेबसाइट पे उन्होंने एक कंपाइल लिस्ट दिया है, जिसमें मेरा भी लिस्ट उसमें जुड़ा है। तो अगर आप वेबसाइट में आईकेएस सेल का जो वेबसाइट देखेंगे रिसोर्सेस में, उसमें से आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे, जो कि अधिकांश पेपर्स हैं और उसमें बुक्स बहुत ही कम है। Do the idea of scientific rationality be applied to Indian science and technology, or do we need some other basis? अंशु सिंह जी का ये प्रश्न है। अब साइंटिफिक रैशनैलिटी तो यूनिवर्सल है, जैसे मैंने बताया था कि व्हाट इज साइंटिफिक थिंकिंग और साइंटिफिक रैशनैलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड फॉल्सिफाइबिलिटी। ताकि मैं अगर वाराणसी में बैठ करके कुछ चीज कहूँ या फिर कुछ बनाऊं किसी माध्यम से, तो वही आप कानपुर में बैठ करके या लॉस एंजलिस में बैठ करके भी बनाने की क्षमता रख सकते हैं। मतलब वो रिप्रोड्यूसिबल है, ऐसा नहीं कि एक तुक्के में मुझे आ गया वो, जिसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं इंग्लिश में। सेरेंडिपिटी ऐसा है कि जैसे मेरे पूर्वज ये करते थे, मैंने भी किया, इसलिए आया। बट ये किस सिद्धांत के आधार पर ये आया, ये मैं नहीं बताने में सक्षम हूँ। तो इसको आप तुक्का बोल सकते हैं, बट उसके अगर आप साइंटिफिक डूइंग्स वर्कआउट कर सकते हैं, तो दैट इज साइंटिफिक that is scientific way of working it. So yes, indeed we know, and it can be applied, but there is a caveat. जैसा भी मैंने एक उदाहरण दिया, कॉपर का जो रस्टलेस पिलर है, now it is the responsibility of people like us to work out what materials went in so that it rendered the copper statue of standing Buddha rustless. So in my opinion, yes, the scientific rationality can definitely be applied to Indian science and technology, with a rejoinder that many of the processes are still not known to us. तो उस पॉइंट में अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये तो आप परंपरागत वे में कर रहे हैं, अगर आप उस बेसिस पे इसको साइंटिफिक रैशनैलिटी नहीं बोलेंगे, तो फिर वी हैव टू अग्री टू डिसअग्री ऑन दैट पॉइंट। We had a discussion yesterday about iron pillar, but it was not made clear to us if it was somewhere else. Okay, ये बुंदेलखंड के विष्णुपादगिरी नामक एक मंदिर पे था। इसका इसका भी वर्णन और उल्लेख आर बालासुब्रमण्यम जी करते हैं, जिनका किताब आईआईटी कानपुर से छपा था जब वो आईआईटी कानपुर में थे। 2006 और 7 की बात है ये। उनका निधन 2009 में हुआ था। तब तक वो विश्वविख्याति पाप आ चुके थे दिल्ली के आयरन पिलर को स्टडी करने में। और ये बात मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व अनुभव होता है कि इन सब विषयों में मुझे प्रेरित करने के लिए, इन सब विषयों में सोचने के लिए वही एकमात्र, यद्यपि वो मेरे डायरेक्ट शिक्षक नहीं थे, बट क्योंकि हम लोग कैंपस में इंटरेक्ट करते थे, आर बालासुब्रमण्यम जी के प्रेरणा से ही
मैं इस विषय पे कुछ प्रवेश कर पाया और प्रेरित हो पाया। ये उनकी क्या कहते हैं, एक उदारता थी और एक विशाल सोच था कि मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होते हुए भी वो मुझ जैसे नए स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में रुचि रखते थे, समय देते थे। और यहाँ तक कि आज तक मेरा वो अधूरा बुक चैप्टर पड़ा हुआ है जो उनके साथ लिखने का प्रयास किया था 2008 में, लेकिन 2009 उनके निधन के बाद वो कभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ। तो उनके किताब में इसका उल्लेख बहुत ही सटीक रूप में आता है। बप्पा माँ जी ने शायद टिप्पणी किया है, प्रश्न नहीं है, बट या धन्यवाद उसके लिए। और अगर कोई किसी ने ये सिएरो पेरडो लिखा है इन इटालियन टर्म्स, दैट्स अ फ्रेंच टर्म, बप्पा बप्पा माजी जी, तो सिएरे पेरडो इट्स अ फ्रेंच थिंग। तो एनीवे, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और ये अवसर प्रदान करने के लिए। नमस्ते। Thank you so much, sir, for coming. Thank you. And thank you for your valuable time.